Good morning, kids. How are you all? You all are good? So, children, I hope you all are practicing in your EVS book also, right? So, children, today we are going to start with a general awareness, that is EVS subject. But before starting with the subject, join your hands and get ready for the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Very good, children. Once again repeat the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. So children, today we are going to start with a general awareness, that is EVS subject. Okay, the last topic that we have learnt in your EVS subject is body parts, right? We have learned the name of the body parts, the various body parts on your body, right? So this was the last topic. So today let's see which is your next topic. The name of your next topic is cleanliness. What do you mean by cleanliness? हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्लेanliness. क्लेanliness का मतलब होता है नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा रहना. ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स सी what we learn today in this topic. Okay, children? So first of all, children, we will learn how to keep your body clean. आप अपने बॉडी को क्लीन कैसे रखते हो? Okay, children? First, we must keep our body clean for good health. हमें अपने बॉडी को क्लीन क्यों रखना है? फॉर गुड हेल्थ, ताकि हम बीमार ना पड़े. अगर आप अपने बॉडी को क्लीन नहीं रखोगे, अगर आप अपने घर को क्लीन नहीं रखोगे, अगर आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन नहीं रखोगे, तो आप बीमार पड़ जाओगे, राइट? यू विल सफ़र फ्रॉम द इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होने से क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं, हम we get ill, right? So why should we follow the cleanliness? We must follow the cleanliness for good health. Cleanliness provides, prevents disease and make us feel fresh. Cleanliness से हमें क्या होता है? Cleanliness हमें cleanliness फॉलो करने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं एंड वी फील फ्रेश. हमें अच्छा फील होता है, वी फील फ्रेश. ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू कीप योर बॉडी क्लीन. हम कौन कौन से क्लीनलीनेस फॉलो कर सकते हैं? डू नॉट ओवर स्लीप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. See, first I'm telling you the normal points which you have to follow in your daily life. Okay, if you don't want to get ill, अगर आपको अपने आप को क्लीन रखना है, फ्रेश रखना है, then we will follow this. Okay, children? And then later on we will see the points which is given in your book. Okay, do not oversleep, get up early in the morning. हमें क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, हमें लेट तक सोना नहीं है. वी शुड नॉट स्लीप टिल, नो, वी शुड नॉट ओवर स्लीप. हमें ज़्यादा देर तक सोना नहीं है, हमें रात में भी जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, राइट? जो प्रॉपर एक टाइम होता है ना हमारा नींद पूरा होने का, वो टाइम हमें हमारा पूरा होना चाहिए. वाई? अगर आप रात में लेट सोओगे, सुबह जल्दी उठ जाओगे, तो क्या होता है? यू वोंट फील फ्रेश. ऐसे लगता है कि हम बीमार हैं, राइट? सो हमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज फील फ्रेश, वी शुड ऑलवेज बी फिट. Then what should we do? The very first thing is you have to get up early in the morning.
आपको सुबह जल्दी उठना है, ओके। Then as soon as you get up early in the morning, the very first thing is you should go to the toilet, flush the toilet after use. जैसे आप सुबह आप यू गेट अप फ्रॉम योर बेड, आपको पहले वॉशरूम में जाके फ्रेश होना है. देन आफ्टर एवरी यूज़, सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हो ना बच्चों, आपको टॉयलेट फ्लश करना है, ओके. ऐसे ही आपको बाहर नहीं आना, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ओके. You have to get freshen up and after using the toilet you should always flush the toilet, okay. Then after using the toilet, wash your hands and feet with soap. जैसे ही आप वॉशरूम में फ्रेश हो जाते हो, आपको पहले फ्रेश होते ही अपने हाथ और पैर को सोप से वॉश करना है, okay children. Then after washing your hands, splash cool water on your eyes. Cool water यानी कि फ्रिज का पानी नहीं. वॉश बेसिन में you have to on the tap and then you have to splash cool water on your eyes. नल का पानी आपको पहले अपने आँखों पे डालना है, ओके. देन रिमूव द डर्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आई. जब आप मॉर्निंग में उठते हो, सुबह उठते हो, तो यहाँ पे आँखों के कॉर्नर पे थोड़ा डर्ट आपको लगेगा, राइट. हाँ, थोड़ा हार्ड सा होता है, यहाँ पे जमा हो जाता है हमारे रात भर में. सो व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड फीट विथ सोप एंड देन यू हैव टू स्प्लैश कूल वाटर. पहले आपको अपना आँखों पे पानी डालना है और फिर आपको यहाँ का जो डर्ट है, यू हैव टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ योर आईज विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स. यू हैव टू रिमूव द डर्ट. ऐसे आपको आपकी आँखों के यहाँ से जो डर्ट है वो आपको रिमूव करना है, ओके. देन आफ्टर डूइंग दैट, ब्रश योर टीथ एंड रिंस योर माउथ वेल. आपको खुद ब्रश करना है टीथ बहुत अच्छी तरीके से और फिर अपना मुंह रिंस करना है, मुंह धोना है, ओके. फर्स्ट यू हैव टू ब्रश योर टीथ एंड देन यू हैव टू रिंस योर माउथ. देन क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर. आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, आपको जो अपना टंग है ना, टंग बॉडी पार्ट्स में मैंने बताया था ना टंग कौन सा है. आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ आपको क्या करना है, आपको अपना टंग क्लीनर से क्लीन करना है. आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे वो बेबी क्लीन कर रहा है अपना टंग. इन दैट वे यू हैव टू यूज योर टंग क्लीनर फॉर क्लीनिंग योर टंग, ओके. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स. रोज दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है. व्हेन यू हैव टू ब्रश योर टीथ, एज सुन एज यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सबसे पहले आपको सुबह में जैसे आप उठते हो आपको ब्रश करना है. देन आफ्टर हैविंग योर डिनर, यानी कि रात को खाना खाने के बाद, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आपको ब्रश करना है. इन दिस वे यू हैव टू ब्रश ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग एंड नाइट, ओके. What will happen after brushing twice in a day? Your teeth will get strong. You have to take care of your teeth ना. अगर आप अपने teeth का केयर नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी जल्दी, right? So for keeping your teeth strong, for getting the germs out from your mouth, you have to brush your teeth twice in a day, okay? Once in the morning and once at the night. मैंने बताया था ना आपको, मॉर्निंग में भी आपको ब्रश करना है और नाइट भी आपको ब्रश करना है. देन टेक अ बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर. सोप एंड वाटर से आपको ब्रश करना है, सॉरी, यू हैव टू टेक अ बाथ. आपको नहाना है. एवरी डे यू हैव टू टेक अ बाथ. वॉश योर हेयर टू. आपको हमें रोज़ नहीं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू हैव टू वॉश योर हेयर, ओके. बॉयज़ यू कैन वॉश रेगुलरली, बट गर्ल्स हु आर हैविंग लॉन्ग हेयर्स, यू हैव टू एटलीस्ट, जिसके लॉन्ग हेयर है ना गर्ल्स के, एटलीस्ट
once in a week you have to wash your hairs, or twice in a week you have to wash your hair. Okay children, then after taking bath, use a clean towel to wipe your body and hair dry. एक क्लीन टावल से आपको नहाने के बाद यू हैव टू वाइप योर बॉडी एंड देन यू हैव टू लेट योर हेयर ड्राई. ओके, ऑलवेज वेयर क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स. हमेशा आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. यू शुड नॉट वेयर द डर्टी क्लोथ्स. ओके चिल्ड्रन, ऑलवेज कैरी अ क्लीन हैंकरचिफ. हमेशा आपको ऐसे नहीं कि स्कूल में ही हम जब जाएंगे तो हैंकरचीफ हमें कैरी करना है. वेर एवर यू गो आउट यू हैव टू कैरी योर हैंकरचीफ. और जब आप स्नीजिंग या कफ करते हो ना, कफिंग, तब आपको जब आप छींकते खांसते हो तभी आपको हैंकरचीफ से अपना माउथ कवर करना है एंड देन यू हैव टू डू इट. ओके, so because of that you have to always carry a handkerchief, which is a very good habit towards a cleanliness. Understood children? Then do not put fingers in your mouth or bite your nails. Why? Because the dirt get collected in the nails which will enter your stomach. आपको अपने फिंगर्स, जब हम खाना खाते हैं, at that time also when you are in school we do, right? We tell you all to first go and wash your hands and then you have to come and have your tiffin. In that same way घर पे भी आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, बट आपको क्या करना है, बीच में जब आप खेलने लगते हो, खेलते खेलते ही आपको अपना जो फिंगर्स है आपको मुंह में नहीं रखना है, या फिर आपको नेल्स बाइट नहीं करना है. क्यों? बिकॉज यू कैन सी द डर्ट, ब्लैक डर्ट इज़ गेटिंग कलेक्टेड इन द नेल्स. जब आप नेल्स कट नहीं करते हो तब आप देख सकते हो कि नेल्स के यहाँ पे ब्लैक कलर के डर्ट अंदर जमा हुए. अगर आप नेल्स अपने मुंह से कट करोगे तो क्या होगा, वो डर्ट पूरा आपके स्टमक में चला जाएगा, फिर आपको इन्फेक्शन होगा, फिर आप बीमार पड़ जाओगे. राइट? सो यू शुड नॉट बाइट नेल्स. देन what will happen if you bite nails? You will fall ill, right? Then nails should be cut at least once in a week. Once in a week आपको nails cut करना है. And do not put any sharp pointed objects like matchsticks or hairpins to clean your ears. Ears are very sensitive, my dear children. बहुत सेंसिटिव होते हमारे कान. तो आपको विदाउट एनी आपको पेरेंट्स के, आपका अगर आपको कान में दर्द होता है या कुछ हो रहा है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. आपको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या मैच स्टिक, कुछ भी, नॉट अ पेंसिल, कुछ भी आपको अपने कानों में नहीं डालना है. यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स. ओके चिल्ड्रेन? सो चिल्ड्रेन, दीज वर द पॉइंट्स ऑफ क्लेanliness जो मुझे that I felt that I have to tell you all. ये सारे आपको अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है. जल्दी उठना है, सब कुछ फॉलो करना है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक. So children, this is your general awareness skill sheet book in which we will see the points and we will see which activity you have to do for the topic. So children, this is the page number 28, which is for the topic cleanliness in your general awareness skill sheet book. So you can see the pictures given over here, which all points are there for keeping your body clean, for keeping your home clean. Okay, so we will see this picture one by one. To be healthy, we should keep our body, clothes and our surroundings clean. So let's see. The first point which is given is brush your teeth ट्वाइस डेली. आपको मैंने बताया था ना, दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है. देन बाथ डेली, रोज़ आपको नहाना है. देन कोम्ब योर हेयर नाइसली. आप बात करके आते हो ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके बाल बनाना है. ओके, कोम्ब योर हेयर नाइसली. यूज़ हैंकी when you have to, whenever you go outside, when you go to school, if you go anywhere, even though if you are at home, अगर आप, if you are not feeling well, you have to always use your hanky. Okay, wear
नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। मैंने बताया ना आपको, साफ सुथरे कपड़े पहनने, यू शुड नॉट वेयर द डर्टी. So children, I have explained you all this page, right? Cleanliness, page number 28. So this is your next page, page number 29. On this page, this is your activity page, okay? You have to do the activity over here. What practice time? What is the question given over here? Tick the things which are used for cleaning. यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, द इमेजेस ऑफ द थिंग्स विच इज़ यूज फॉर जो क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है ना, जो हम घर में क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं या अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे आपको टिक करना है. हर एक पिक्चर के बाजू में एक जो सर्कल्स दिए हैं ना, उसमें आपको टिक करना है. सिर्फ जो थिंग्स क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं उसे ही टिक करना है, ओके? जो हमें हाउस क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ दिस? डिटर्जेंट. कपड़े धोने के लिए मम्मी डिटर्जेंट यूज़ करती है ना, सो दिस इज़ यूज फॉर क्लीनिंग आवर क्लोथ्स. देन व्हाट वी विल डू, ये क्लीनिंग के लिए यूज़ होता है तो हम इसे टिक करेंगे, ओके? देन व्हाट इज़ दिस? स्पंज, स्कॉच ब्राइट. वी यूज़ दिस फॉर वॉशिंग द वेसल्स. बर्तन घसने धोने के लिए हम ये यूज़ करते हैं. सो वी विल take this because this is used for cleaning the vessels, right? Then the next is water. Water भी हम cleaning के लिए use करते हैं. Yes, so take this. After this, soap. ऐसे डिटर्जेंट हम बकेट में यूज़ करते हैं ना for washing the clothes. पहले मम्मी इसमें कपड़े भिगाती है, फिर कपड़ों को क्लीन करती है, right? So we will take this. Then dust pan. After dusting, after sweeping the floor, हम इसमें मम्मी इस पूरा जो डस्ट होता है इसमें मम्मी जमा करती है, कलेक्ट करती है. yes, dust pan. So this is used for cleaning. हम इसे भी टिक करेंगे. Then bat. Bat is used for cleaning? No. Bat से हम क्या करते हैं? हम खेलते हैं. So this is not used for cleaning. तो हम ये नहीं टिक करेंगे, okay? Then what is this? Choline. Okay? We use this for cleaning the glasses. Glasses clean करने के लिए हम use करते हैं. Then we will take this because this is used for cleaning. Gloves. When we use acid in the toilets, we use this gloves for cleaning the toilets, right? Toilets clean करने के लिए मम्मी gloves पहन के clean करती है. We have to take this gloves, okay? Then brush. We use this brush for while washing clothes, right? While cleaning the clothes, washing clothes. This is used for cleaning, right? Then we have to take this, okay? Then the next is brush, paint brush. Paint brush is used for cleaning? No. इससे हम क्या करते हैं? हम पेंटिंग करते हैं. So we should not take this. Then the next is mop. Mop, right? We use this for removing the excess of water, right? This is used for cleaning? Yes. So we should take this. Then what is this? Tell me children. Phenyl, right? Phenyl. We use this phenyl while mopping. पोछा लगाते वक्त मम्मी फिनाइल डालती है. Yes, this is phenyl. Then phenyl is used for cleaning the floor, right? Then we should take this. Then the next is mop, right? We use this mop. मॉपिंग करने के लिए मम्मी घर पे यूज़ करती है ना, सो दिस इज यूज फॉर क्लीनिंग द फ्लोर. देन वी शुड टेक दिस. देन द नेक्स्ट इज स्पून. स्पून से हम क्लीनिंग करते हैं? नो, वी ईट विद द स्पून, राइट? सो वी शुड नॉट टेक स्पून. एंड बॉल. यू यूज बॉल फॉर क्लीनिंग? नो. देन यू शुड नॉट टेक
ball also. Okay, so this is your page number 29. So this is your page number 29, the activity page, on which you will take the things which are used for cleaning. Okay children. So children, this was the topic cleanliness, in which we have learned how to keep our body clean and what all things are used for the cleaning purpose. Okay, so practice the activity given in the topic cleanliness. Okay children, thank you for watching this video. Keep practicing. Bye bye.